Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 6, 3rd edition, New Oxford Modern English, unit number 1, Nicobarbinis. This is the exercise of unit number 1, Nicobarbinis, page number 7. Exercise consists of many parts. First of all, comprehension. comprehension का मतलब है समझ, यानी समझ कर पढ़ना. इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जिनके ऑलरेडी ही मैं नोट बना चुकी हूँ, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी. और नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स. इसकी भी मैं नोट बना चुकी हूँ, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. वर्किंग विद वर्ड्स में कितने क्वेश्चन हैं? एक क्वेश्चन ये हो गया. और वर्किंग विद वर्ड्स में नेक्स्ट क्वेश्चन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब है. मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी. और जो काम बुक में करने का है उसे मैं बुक में डन कर चुकी हूँ. फर्स्ट है इसमें कंट्रैक्शन, इसे भी मैं डन कर चुकी हूँ. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज के भी तमाम तर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो चुके हैं. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में अबाउट 5 क्वेश्चन हैं. और आगे है नेक्स्ट पेज पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग. इसे भी मैं डन कर चुकी हूँ और आपको समझाऊंगी भी. और नेक्स्ट पेज पे आ जाए. पेज नंबर 12 पे लास्ट में है कंपोजिशन. और कंपोजिशन भी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ. और वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपके तमाम तर क्वेश्चन की सलूशन आपको इसी वीडियो में मिल सकें. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं. इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फॉलोइंग में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आपने आंसर लिखने हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. व्हाट डू वी लर्न अबाउट निकोबार्बिनस इन द फर्स्ट पैराग्राफ. आंसर लिखें इसका. निकोबार्बिनस इज द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हु डज the most extraordinary thing. He lives in a city called Venice. Next question. Who is Rosie? इसका आंसर भी आप नोट कर लें. रोजी कौन है? रोजी इज निकोबार्बिनस बेस्ट फ्रेंड. सी क्वेश्चन है Why don't people pay attention to what Rosie says? लोग क्यों अटेंशन या तवज्जो नहीं देते थे कि रोजी क्या कह रही हैं? उसकी क्या वजह थी? वजह लिखनी है आपने. वजह है people don't pay attention to what Rosie says because she always have wild idea. D question है What do things does Rosie suggest that she and Nicobarbinas should do? आंसर लिखें इसका. Rosie suggest का मतलब है तजवीज़. Rosie suggests that she and Nicobarbinas should pull up every wheat on this doorstep. The next thing is to discover the land of dragons. Next question है When do the children go on their adventure and what do they take with them? The children go on their adventure next morning when it is just starting to get brighter. They take buns and lemonade with them. F question है Why do they meet on their journey? What happened to each of the two encounter? Encounter का मतलब है सामना. They meet, आंसर लिखें इसका. They meet the night watchman and a dog on their journey. The night watchman tries to stop them from going on their adventure. Rosie trips over the dog and it barks at them. The dog eats their buns. G question है How does Nicobarbinas escape from the men in the orchard? Orchard का मतलब है बाग. आंसर लिखिए सर. He escaped by doubling himself up and going backward as fast as he could. The man's legs are knocked and he landed in a pile of leaves. Then he hid in a shed. H question की तरफ आए. H question है How does Nicobarbinas get out of the well? वो कुएं से कैसे निकला? कौन निकला? Nicobarbinas. कैसे कुएं से बाहर आया या गहरी जगह से वो कैसे बाहर आया? आंसर लिखें इसका. He swam through a long narrow passage made of stones. These questions are more challenging. Discuss them first. I have what show us that the man in the orchard doesn't really want to break down the door to the shed. इसका आंसर क्या है? लिखें आप. The line that show the man is reluctant to break the door down are right. I am going to break the door down, said the man. And then because he knew he'd have to repair the door himself, he added, Do you hear? He also shouted and banged the door, but never he didn't break it. He'd contraction form है he had की. ठीक है बच्चों.
नेक्स्ट क्वेश्चन है जे, व्हाट आर थॉट निको बॉबी ने इसके क्या सोच रहा था या उसकी क्या सोची थी हैज़ ही इज़ फॉलिंग डाउन, जब वो कुएं में गिरा। और ईच वन, हर एक को एक्सप्लेन व्हाट यू थिंक ही इज़ फीलिंग, हर एक जो वो सोच रहा था उसको आप एक्सप्लेन, हर एक सोच को उसकी एक्सप्लेन करें जो वो फील कर रहा था। आंसर लिखें इसका। सेवरल थॉट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड एट सेम टाइम, एक ही वक्त में कई सारे जो सोचें थी वो उसकी माइंड में आ रही थी, उसके दिमाग में आ रही थी। ही थिंक दैट ही इज़ इन अ बिग ट्रबल, वो सोच रहा था कि बहुत बड़ी मुसीबत में है। देन ही थिंक, फिर उसने सोचा अबाउट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के बारे में, रोज़ी हु हैज़ स्टार्टेड द होल एक्सपीडिशन, फिर उसने अपने दोस्त के बारे में सोचा कि वो सारी मुहिम उसी ने शुरू की हुई है। ही इज़ ब्लेमिंग हर, वो उसको इल्ज़ाम दे रहा था। ही थिंक दैट ही इज़ सो अनकाइंड, वो ये सोच रहा था कि वो बिल्कुल भी मेहरबान नहीं है। बिकॉज ऑफ हर, उस ही की वजह से, ही इज़ इन अ स्नेक पैक्ट, कि वो सांपों की पिटारी में है, यानी वो ख़तरे में है। देन ही थिंक, फिर उसने सोचा दैट ही इज़ इन अ डीप अनयूज्ड वेल विद स्लिम स्लिपरी साइड, उसने ये सोचा कि वो पतला सा गहरा सा कुआं और जो कि हर तरह से स्लिपरी फिसलने वाली साइडें थी उसकी। देन ही कैन नेवर क्लाइंब, और फिर वो उसने ये भी सोचा कि वो कभी भी यहाँ से नहीं चढ़ सकेगा, यानी बाहर नहीं आ सकेगा। ऑल दीज थॉट मेक हिम अफेयर्ड एंड होपलेस, यही सारी सोचें उसको क्या कर रही थी, होपलेस, नाउमीद कर रही थी और उसे खौफज़दा कर रही थी। ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने बुक में ही डन किया हुआ है। राइट द लाइन ऑफ स्पीच बिलो, पुट द नेम ऑफ स्पीकर आफ्टर ईच वन, ये जो कुछ हमें लाइनें दी गई हैं ये किस किस ने कही थी। फर्स्ट का लिखे मैन, सेकेंड है रोज़ी, थर्ड रोज़ी निको बॉबीनेस, और फिफ्थ वन लाइन जो है वो द मैन, और लास्ट है रोज़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। वर्किंग विद वर्ड्स, यानी लफ्ज़ों के साथ काम करना। लुक एट दिस लिस्ट, इस लिस्ट को देखें, ऑफ वर्ड, ये जो लफ्ज़ों की लिस्ट बनी हुई है इसको देखें। एंड फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी, ये स्टोरी के ही जुमले हैं। रिप्लाइड, विस्पर्ड, येल्ड, ग्रोल्ड, कॉल्ड आउट, क्राइड, आस्क्ड, शाउटेड। फाइंड वेयर दे हैव बीन यूज्ड इन द स्टोरी, ढूंढने के ये स्टोरी में कहाँ पर यूज़ हुए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑथर विल यूज़ द वर्ब सैड टू से, ज़्यादातर जो ऑथर है मुसन्निफ़ है उसने सैड यानी टू से का वर्ड यूज़ किया है। बट सम टाइम दे नीड टू बी मोर प्रिसाइज, ये कुछ वक्तों में उसने और वर्ड भी यूज़ किए हैं। पिक आउट एनी, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अबव, इनमें से आपने 4 वर्ड लेने हैं एंड यूज़ देम इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और उसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैं इन सब के ही जुमले बना चुकी हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरा आप ध्यान दें कि इस सब का एक ही मतलब है। टू से, उसने कहा, जैसे इसका मतलब है उसने कहा, कुछ कहा ना, तो रिप्लाइड का मतलब है वापस जवाब देना। विस्पर्ड का मतलब है सरगोशी करना, यानी कान में जो आराम से हम बोलते हैं सरगोशी करते हैं उसको विस्पर्ड बोलते हैं। येल्ड का मतलब है चिल्लाना। ग्रोव का मतलब है घराना। कॉल्ड आउट का मतलब है बुलाना। क्राइड का मतलब है रो कर पुकारना। आस्क्ड का मतलब है पूछना, और शाउटेड का मतलब है चिल्लाना। इसी के जुमले बनाने हैं। मैं सारे ही वर्ड्स के जुमले बना चुकी हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ड है रिप्लाइड। आई रिप्लाइड टू द टीचर आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल। येल्ड, द मैन येल्ड फॉर हेल्प, आदमी हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। कॉल्ड आउट, टीचर कॉल्ड आउट फॉर वर्क। विस्पर्ड, इन द मीटिंग अली विस्पर्ड हिज फ्रेंड। आस्क्ड, शी आस्क्ड हर टीचर फॉर हेल्प। क्राइड, he cried because he had hurt his knee. Next, he growled, not now I am busy. He growled, वो कराया कि मैं नहीं, अभी नहीं, मैं अभी बिजी हूँ। Shouted, he shouted at Ali but he didn't hear at. बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे है रेगुलर एंड इनरेगुलर वर्ब। इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ना है। इसमें यह बताया गया है कि तकरीबन इंग्लिश के जो वर्ड हैं उसको वर्ब को पास्ट और पास्ट पार्टिकल बनाने के लिए ईडी के इजाफे से वो पास्ट पार्टिकल बन जाते हैं, लेकिन हर एक वर्ड पर ये अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे है वी एडिंग अ सफिक्स। सफिक्स किसे कहते हैं? लाहके को कहते हैं। आपने उर्दू में पढ़ा होगा लाहके, साबके। लाहके की मैं डेफिनेशन आपकी लिख चुकी हूँ। ऐड करने से, कुछ एडिंग करने से, विच मेक अ न्यू वर्ड, जिससे कोई नया वर्ड बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़ लें, इस पैराग्राफ को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने बुक पर ही सॉल्व किया हुआ है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि बग़ैर उसमें कोई तब्दीली किए हुए बेस फॉर्म पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। कोई वर्डिंग, कोई स्पेलिंग की चेंज नहीं होती है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दी गई है, एक डन भी हो चुका है ऑलरेडी। सेट, 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 ये इसका बेस फॉर्म भी है, पास्ट भी है और पास्ट पार्टिसिपल भी है।
पुट और पुट, तीनों फॉर्म में कोई चेंज नहीं हुई है स्पेलिंग की, और ये तीनों एक ही भी यही मिसाल है। कट कट कट, इसका बेस फॉर्म भी यही है, पास्ट भी यही है और पास्ट पार्टिसिपल भी यही है। हर्ट हर्ट हर्ट, लेट लेट लेट। आगे आ जाए, यहाँ पे ये कुछ वर्ड हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। इसमें जो बेस फॉर्म है वो चेंज है, जबकि इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों की स्पेलिंग सेम है। जैसे कि सिट सैट सैट, बाय बॉट बॉट, गेट गॉट गॉट, ये गेट गॉट गॉट आपने खुद लिखना है। टीच टॉट टॉट, TOUGHT, कीप केप्ट केप्ट, से सैड सैड, फील फेल्ट फेल्ट, FELT फेल्ट, FELT फेल्ट। आगे आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है verbs that have a change in spelling in the past tense and for the past participle। इसके तीनों वर्ड जो हैं बेस फॉर्म के, पास्ट के और पास्ट पार्टिसिपल के, तीनों की स्पेलिंग चेंज है। ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, सीव सीव्ड स्वन, सिंग सैंग संग, सी सा सीन। राइट रोट, WROTE रोट और WRITTEN रिटन। टेक टोक टेकन, TAKEN टेकन। नो न्यू नॉन, KNEW न्यू, KNOWN नॉन। ईट एट ईटन, एट की स्पेलिंग है ATE एट, ईटन की स्पेलिंग है EATEN। ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, DROVE ड्रोव, DRIVEN। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन किसे कहते हैं, एक दफ़ा इसकी रिव्यू मैं आपको दे दूं। पंक्चुएशन मार्क में कुछ मार्क एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख चुकी हूँ कि पंक्चुएशन मार्क में कौन कौन से शामिल होते हैं। कॉमा, जिसका साइन ये है। एपोस्ट्रोफे, जिसका ये साइन है। हाइफन, ये डैश जो दो वर्ड के बीच लगा होता है। एलिप्सिस, ये जो डॉट होते हैं ये भी पंक्चुएशन मार्क में आते हैं। फुल स्टॉप, ये भी पंक्चुएशन मार्क में आता है। ये वाला साइन एक्सक्लेमेशन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क, ये कुछ एग्जाम्पल हैं पंक्चुएशन मार्क के। अब इन मार्क में से हम जो आज पढ़ेंगे वो है एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे क्या है, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको समझाने के लिए लिख चुकी हूँ। एपोस्ट्रोफी इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड इन कंट्रैक्शन टू रिप्लेस मिसिंग लेटर। जैसे ये लिखा हुआ है वी विल, इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है, विल। तो बेटा नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, यूज एपोस्ट्रोफे इन द फॉलोइंग वर्ड टू मेक कंट्रैक्शन। एपोस्ट्रोफे का यूज करके हमने टू मेक कंट्रैक्शन, अब हम कैसे बनाएंगे। आई एम लिखा हुआ है, आई एम। हैव नॉट, हैवेंट। दे आर, देयर। वी आर का कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है, वियर। कैन नॉट, कांट। दे विल, देल। शैल नॉट, शंट। इट इज, इट्स। दे आर, देयर। विल नॉट, विल नॉट का क्या है, want। I would, I'd। she will, shall। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी राइट डाउन किया हुआ है, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन मिस्टेक्स, करेक्ट दूस दैट आर रॉन्ग। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दी गई हैं A से लेके F तक। इनमें अगर कोई करेक्ट है तो उसको छोड़ के बाकी जो रॉन्ग सेंटेंसेस हैं उसको आपने करेक्ट करना है। इसके मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। द एलिफेंट हैड अ मैन ऑन इट्स बैक, कॉमा हटा के जस्ट आपने ITS लिखना है। नेक्स्ट है द मैन सोल्ड बटन्स, ये कॉमा हटा के आपने S लिखना है, सिर्फ कॉमा नहीं लिखना। एंड हुक्स, इसका भी कॉमा हटा लेना है। दिस ईयर स्टूडेंट्स, यहाँ S हटा लेना है और S यहाँ रहने देना है। ईयर स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर। D है द लेटर वॉज साइंड यूअर्स ट्रूली, यहाँ जो यूअर का कॉमा लगा हुआ है वो आपने हटा लेना है। अवर्स, S और R के बीच का जो कॉमा है वो हटा के अवर्स लिख लेना है। अवर इज़ द येलो कार। और जो लास्ट सेंटेंस है यहाँ पे, ही इज़ अ गुड बॉय, तो ये करेक्ट है। इसके ये आप दोबारा इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसकी जगह आप करेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। 5 क्वेश्चन है, एट एपोस्ट्रोफेस टू द फॉलोइंग। फॉलोइंग में हमें ये जो वर्ड या फिर सेंटेंस दी गई हैं हमने इनमें ऐड करना है एपोस्ट्रोफेस का। यहाँ पे शायद आपको समझ ना आए, इसके मैं नोट बना चुकी हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन की डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, लुक एट द अबाउट द ऑथर सेक्शन एट द एंड ऑफ द स्टोरी
स्टोरी के एंड पे एक सेक्शन ऑथर के बारे में लिखा हुआ है, उसको देख लेना है। द डेट्स ऑफ द ऑथर बर्थ एंड डेथ आर गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो राइटर है उसके बर्थ और डेथ की डेट ब्रैकेट में लिखी हुई है। ब्रैकेट आर यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विद इन अ सेंटेंस। जो ब्रैकेट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होती हैं। फाइंड एंड मार्क डाउन 2 एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स इन योर लेसन। एंड ऑफ द स्टोरी में ये जो ब्रैकेट है और इस डेट का जिक्र है कि ये जो ब्रैकेट में डेट दिया गया है 1972 इस बर्थ डेट है राइटर की और 2000 की डेथ डेट है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो ब्रैकेट में दी गई है हमने लेसन में कोई सी 2 ऐसी इन्फॉर्मेशन हमने तलाश करनी है। जी तो बच्चों, मुझे फर्स्ट पेज पे एक इन्फॉर्मेशन ये मिली है जो कि ब्रैकेट में अवेलेबल है। एक यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है इसकी। क्या लिखा हुआ है इसमें? विच इज़ वट रोजी थॉट ही वुड से। पेज नंबर 5 पर ये जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी गई है, हमसे 2 ही ब्रैकेट की डिमांड की गई है क्वेश्चन में, तो मुझे ये 2 नज़र आई हैं, तो आप भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेंटेंसेस जैसे कि आपको मालूम है कि सेंटेंसेस बोलते हैं जुमलों को। क्वेश्चन क्या है? राइट क्वेश्चन फॉर दीज आंसर, नोट वेरिएशंस आर पॉसिबल। नोट भी दिया गया है कि अगर आप कोई तब्दीली करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, हम उसकी थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर सकते हैं। सेम टू सेम इसी सेंटेंसेस को फॉलो नहीं करना, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ चेंज कर सकते हैं। ए से लेके ई तक के सेंटेंसेस हैं, मैंने यहीं पर ही राइट डाउन किए हुए हैं। शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, आपने इसका क्वेश्चन कैसे बनाना है? वॉज को आपने स्टार्ट में लिख लेना है, वॉज शी द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है डू यू, इसका मैंने सेंटेंस बनाया है, डू यू हैव पार्टी एट नाइट, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। इज़ इट रेनी आउटसाइड, इस जब स्टार्ट में आ जाए तो क्या, इसका मतलब क्या बनता है, यानी आप सवाल पूछ रहे हैं। आई डिड, हु डिड दिस, क्वेश्चन मार्क लगाएं। और लास्ट है यहाँ पे हु का इस्तेमाल करके आप इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। हु कॉल देम व्हाट, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पेज पे आए बेटा, तो नेक्स्ट पेज में है 3 मेक अ स्टेटमेंट, कमांड, क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन फॉर ईच ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। डोंट फॉरगेट द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क। हमें ये एक नोट अलग से फिर बताया गया है कि आपने पंक्चुएशन मार्क को नहीं भूलना। मैन और मशीन को यूज़ करके स्टेटमेंट लिखनी है, फिर कमांड लिखना है, फिर क्वेश्चन बनाना है। इसी वर्ड को यूज़ करके हमने फिर ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें क्वेश्चन मार्क यूज़ हो या क्वेश्चन हो और जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ हुआ हो। ये तो हमें इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है ना, मैन और मशीन। अ मैन इज़ नॉट अ मशीन, ये बयान है, स्टेटमेंट है। इज़ अ मैन अ मशीन, क्या आदमी कोई मशीन है, तो ये क्वेश्चन है। मेक दैट मैन फिक्स द मशीन, तो ये कमांड है, ये हुक्म दिया जा रहा है। दैट्स नॉट अ मैन बट अ मशीन, एक्सक्लेमेशन, फिजाइया जिसको उर्दू में कहते हैं। हम ये वर्ड दिए गए हैं, मैं इसके सेंटेंस बना चुकी हूँ, आप ही नोट कर लीजिएगा। तो बेटा फर्स्ट वर्ड है कैट एंड डोर। द कैट इज़ बिहाइंड द डोर, ये स्टेटमेंट है। ओपन द डोर फॉर कैट, कमांड है ये। इज़ द कैट बिहाइंड द डोर, ये क्वेश्चन है। ओह द कैट इज स्टिल बिहाइंड द डोर, ये क्या है? ये है एक्सक्लेमेशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है लाउड एंड नॉइज, इन्हीं वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं। देयर इज़ अ लाउड नॉइज, तो ये स्टेटमेंट है। कमांड का सेंटेंस है मेक अ लाउड नॉइज। क्वेश्चन इज़ देयर अ लाउड नॉइज, और एक्सक्लेमेशन अ नॉइज दैट लाउड। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेजर आइलैंड। देयर इज़ अ ट्रेजर इन एन आइलैंड, ये स्टेटमेंट है। गो एंड फाइंड द ट्रेजर इन द आइलैंड, ये कमांड है। इज़ देयर हिडन ट्रेजर इन एन आइलैंड, ये क्वेश्चन है। ओह वी फाउंड ट्रेजर ऑन द आइलैंड, ये एक्सक्लेमेशन है। पॉट्स एम्प्टी, द पॉट आर एम्प्टी, स्टेटमेंट है। एम्प्टी द पॉट्स, कमांड है। आर द पॉट एम्प्टी, एम्प्टी ये क्वेश्चन है। ओह द एम्प्टी पॉट हैज़ फॉलन, ये मार्क लगाएं, ये एक्सक्लेमेशन है। जी तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, चेंज और रिमूव वर्ड्स इन दिस स्टेटमेंट्स सो दैट दे हैव द ऑपोजिट मीनिंग्स। आपने ये जो हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंस को हमने ऐसे चेंज करना है कि इसकी मीनिंग ही उल्टे हो जाएं। तो एक तो सॉल्व हुआ है, जिसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, आई कैन प्ले द पियानो, यहाँ पे अगर कैन नॉट लग जाए तो इसकी मीनिंग बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। आई कैन नॉट प्ले द पियानो। हमने भी ऐसे ही सेंटेंस बनाने हैं। यू कैन नॉट फ्लाई टू चाइना, नॉट को हटा के यू कैन फ्लाई टू चाइना। हेयर डज नॉट ग्रो,
नॉट को हटा के सिर्फ लिखें हेयर डज ग्रो। माइस रोर, माइस डू नॉट रोर। अजमल डज नॉट हैव अ फुटबॉल, डज नॉट को हटा के अजमल हैव अ फुटबॉल। तो इस तरह ये सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सक्लेमेशन इनटू स्टेटमेंट। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगी हुए हैं ना, इनको हटा के हमने इन सेंटेंसेस को ऐसे बनाना है कि वो स्टेटमेंट सेंटेंसेस बन जाए। ठीक है, डू नॉट चेंज द मीनिंग, लेकिन ऐसे सेंटेंस बनाने हैं एक्सक्लेमेशन हटा के स्टेटमेंट सेंटेंस बनाना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट अ लवली ड्रेस, आप लिख लें यहाँ पे दिस इज़ अ लवली ड्रेस। ठीक है बच्चों, एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाएगा। बी है हाउ ब्रेव यू आर, सेंटेंस इसका बनाएं स्टेटमेंट के लिए, यू आर वेरी ब्रेव, फुल स्टॉप लगाते जाएं। हाउ एंग्री शी इज़, आपने सेंटेंस बना लेना है शी इज़ वेरी एंग्री। और लास्ट सेंटेंस है इसका व्हाट अ फाइन डे इज़ इट, इट इज़ व्हाट अ फाइन डे इट इज़, सेंटेंस बनाएं स्टेटमेंट के लिए, इट इज़ अ फाइन डे। नेक्स्ट है इडियोमेटिक लैंग्वेज। इडियोमेटिक किसे कहते हैं, हम मुहावरे को कहते हैं। बेशक आप यहाँ पे पेंसिल से यहाँ लिख भी लें ताकि आपको मीनिंग इसकी ना भूलें। बेटा यहाँ पे ये हमें सेट अबाउट, अब सेट का वर्ड तो हम कई जगह पे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ अबाउट समथिंग इस्तेमाल हो जाए या लिखा हुआ मिले हमें, तो इसकी जो मीनिंग है वो चेंज होगी। वो किसके लिए यूज़ होगी, टू बिगिन के लिए। यहाँ पे हमें सेंटेंस भी दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। अब सेट समवन बैक, अगर ये सेंटेंस में कहीं लिखा हो सेट समवन बैक, तो इसकी मीनिंग बनेगी टू डिले। सेट इन की मीनिंग बनेगी टू बिगिन। सेट समवन ऑफ, टू कॉज टू बिगिन। ठीक है बच्चों, अगर सेट के साथ समवन ऑफ लगा हो तो इसकी मीनिंग बनेगी टू कॉज टू बिगिन। सेट समथिंग ऑफ, तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी, टू कॉज अ डिवाइस टू एक्सप्लोड। सिग्नल टू स्टार्ट, टू मेक समथिंग लुक अट्रैक्टिव। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें सेट ऑफ यूज़ करके इसकी मीनिंग को वाज़ेह किया गया है। आप यहाँ तक के सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इसको इस बुक में ही याद कर लें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है डी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेनिस एंड आंसर द क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट आंसर विद अ टिक। ये हमें कुछ ऑप्शन दिए गए, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसके साथ ऑप्शन भी दी गई हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है आपने उसको क्या करना है, टिक करना है। मैंने सर्कल लगाया है, आप बेशक टिक कर लें यहाँ पे। वेनिस इज़ अ सिटी इन, ये किसकी सिटी है, फ्रांस की है या इटली की है, इटली की है, इटली को टिक कर लें। द सिटी इज़ लाइक अ मेज। वेनिस इज़ फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर। द सिटी इज़ इन डेंजर ऑफ सिंकिंग। वेनिस हैज़ लॉट्स ऑफ म्यूजियम्स एंड कैफ़ेज। ये कंपोजिशन है। इसमें क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स एंड थिंक व्हाट दे आर अबाउट, देन राइट अ टॉपिक सेंटेंसेस। आपने ये जो हमें पैराग्राफ दिया गया है इसको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इसकी हेडिंग देनी है, हेडिंग समझ लें, बल्कि टॉपिक, इसको क्या टॉपिक बनता है आपने वर्ड लिख लेना है। इस पैराग्राफ को समझ के पढ़ने के बाद जब आपको समझ आए किस टॉपिक पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे इसकी टॉपिक लिखनी है। तो टॉपिक के लिए इस पैराग्राफ का वर्ड बनता है लाइफ जैकेट। ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इसका टॉपिक है हॉबीज़, और ये सी पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसके बारे में है, क्लेanलीनेस। और लास्ट है स्लीपलेस। बेटा तकरीबन एक्सरसाइज सारी सॉल्व हो चुकी है, एक क्वेश्चन और रहता है। इस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो आपके काम आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो फिर आप बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। क्योंकि साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि औरों का भी फ़ायदा हो। What would, लास्ट क्वेश्चन है इसका, तकरीबन ये लास्ट क्वेश्चन बन रहा है। What would the most amazing room you have to ever seen look like? Write a description of the room and its content. अच्छा बेटा ये जो दिया हुआ है ना, स्कैन द QR कोड फॉर पेज नंबर 5, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। ये फर्स्ट पेज पे आ जाएं। ये इस QR कोड का जिक्र है यहाँ पे अपने मोबाइल से। ये एक ऐप होती है जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करोगे, फिर अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही बुक जो इसकी पिक्चर है ना, यही बुक और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है इस QR कोड के अंदर मौजूद है।
ये क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएँ। यहाँ पे ये जो हमें हिंट्स दी गई हैं, इन्हीं हिंट्स को यूज़ करके हमने एक पैराग्राफ रेडी करने हैं, जो कि मैं ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। ये क्रिएटिव राइटिंग है बॉबीनेस की। द मोस्ट अमेजिंग रूम दैट आई हैव एवर सीन इन अ लार्ज एंड बिग रूम. Its ceiling is very high and colorful, and also it is very expensive. The room is decorated with colorful light and with colorful carpets. The shape of the room is like hexagon. In the room there are many furniture. The furniture is very organized. There are beds and sofa. The sofa is very comfortable. The bed is close to the window. The window is like L shape. Most of the time window is open. कर्टन पर्दे को बोलते हैं. When I move the curtain, I see a rabbit. The color of the rabbit is white color. When I enter the room, I feel happy and so excited. नोट डाउन कर लीजिएगा. अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.